Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 13 July 7:20 p.m. Saturday evening and we are back with another learning video, and the agenda of this video would be to learn and discuss how to trail your stop losses, right? Agar let's suppose if you are entering in a trade at 100, so what stop loss you have to keep, how to analyze or how to calculate that stop loss based upon your risk to reward, based upon your risk appetite, right? And how to trail that stop loss. So whenever I'm talking about trailing that stop loss, right, it means either moving up or moving down. So we are gonna discuss everything about stop losses, that why stop losses are important, why you should have it in the system, and do the big traders or the big HFT traders or HFT companies know your stop loss? Because I've heard this complaint many times that exactly you have taken a trade, let's suppose at 100, and kept your stop loss at 20% loss. Let's suppose you kept it at 80, and the value of that particular option, whether it's call or put, it came around 80 exactly or 79, and it again went back up. So many traders feel this, that exactly the market hit their stop loss and went again back up. Why it happens, we'll also discuss that. And the thing which you are thinking that the big traders or the HFT companies know your stop loss, I will give a clarity also on that, that why you are made to think that somebody knows your stop loss. All right, we'll discuss everything about the stop loss. And people use many different trading setups, so we'll discuss around that in different time frames and on different setups. So it's gonna be a little bit long video, so keep focus and keep learning, traders. And what else I can say, if you are a regular viewer of our videos, and if you are liking our content, leave a like, leave a comment on the video. If you are someone new watching the video for the first time and you are liking the content, subscribe the channel, traders. Okay, so without any more delay, let's start the discussion on the stop losses. Okay, so first of all, I would like to address the issue that uh, I think everybody must know what a stop loss is, right? So I would not define what actually is a stop loss. Why you should have it in your trading system, I would rather discuss on that. So coming to the why part, basically, देखो, if you are taking a trade at 100, and particularly I'll talk in context of option buying, because 90% of traders are option buyers. All right, so selling में it's a little bit different, because selling में क्या होता है, अगर spike आ रहा है, if the spike is coming, so आपको लगेगा कि आपका stop loss trigger हो जाएगा, but how you trail your stop loss and how you keep your stop loss is different in option selling and option buying. दोनों की methodologies अलग होती है, दोनों का calculate करने का तरीका अलग होता है. But mostly I would rather discuss option buying, because 90% ऑफ ट्रेडर्स आपके ऑप्शन बायर्स होते हैं. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अब देखो, स्टॉप लॉस बेसिकली, आई थिंक विदाउट स्टॉप लॉस, इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू हैव अ ट्रेडिंग सेटअप, आपका कोई सिस्टम है जिसमें स्टॉप लॉस नहीं है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करो. स्टार्ट हैविंग स्टॉप लॉस इन योर ट्रेड्स, whether it is a positional trade, whether it's an intra trade, with any sort of trade, whether you are a swing trader or intraday trader. और आप अगर आपको अभी 9 सवा 9 बजे, at you are buying at 9:30 and you want to sell at 9:45. All right, so even for such a short time frame, you should have a stop loss, because if you are a trader and you want to take your trading to a next level, and you want to be a profitable trader, so what your biggest aim should be is to cut your losses as fast as possible and be in your winners for as long as possible. So how to cut your stop loss, how to cut your losing trades, is the stop loss is the only way through which you can know that this was a losing trade. Okay, so we'll discuss when you are entering a trade, what should be your risk to reward on the basis of your capital, on the basis of the time frame which you are on, and on the basis of your trading style, whether you are positional. So if you are positional, what should be your trading stop loss, right? So we'll discuss everything. Let's I think first of all, let's go to a chart. And या सो दिस इज़ निफ्टी 50. अब देखो क्या होता है कि बहुत लोग के अपने ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं. एवरीबडी हैज़ देयर ओन ट्रेडिंग सेटअप. सम पीपल ट्रेड ऑन फिबोनाची सीरीज, सम पीपल ट्रेड ऑन मूविंग एवरेज सेटअप, सम पीपल ट्रेड प्लेनली ऑन सप्लाई डिमांड जोन्स. उनको मालूम है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा
बेचने का मौका मिलेगा और कहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदने का मौका मिलेगा। तो सबके अपने ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं एंड देर आर मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. People use multiple ways. People use OI data also to trail their stop losses. So I'll discuss multiple strategies. I'll discuss Fibonacci, I'll discuss moving averages, and I'll also discuss supply and demand strategies here and how to trail your stop losses in that. Right, so first we'll come to our moving average setup. ऑल राइट, देखो अब मूविंग एवरेज सेटअप की वीडियो मैंने अलग से बना के दिया हुआ है. मैं आई विल पुट द लिंक, आई विल गिव द लिंक to that moving average setup video. It's I think in 3 parts, right? So I'll attach every part wise link in the description, and even I'll give the link to the video in the top right corner of this video. All right, so अगर आपको moving averages का video देखना है, you can first go and learn what exactly is moving average setup and how does it work. Right, so यहाँ पे मेरे पास I have 5 moving averages. काफ़ी लोग इनमें से 4 यूज़ करते हैं, 20, 50, 100 and 200. बट टू बी मोर प्रिसाइज एंड टू कैच अर्ली ट्रेंड्स आई यूज़ 5 ऑल्सो. ठीक है, अब देखो, लेट्स फर्स्ट गो टू आर कॉल ऑप्शन. एंड ये जो कॉल ऑप्शन है, आई एम ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. क्योंकि देखो, अगर आप आपका जो टाइम फ्रेम है ना, वो डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेडर हो. इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, यू शुड लुक एट 1 आवर और प्रॉब्ली डेली टाइम फ्रेम. इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आप 15 मिनट्स देखो या आप 30 मिनट्स देखो. अगर आप पोजिशनल हो तो भी आप 1 आवर देख सकते हो, और अगर आप स्विंग ट्रेडर तो भी आप 1 आवर देख सकते हो. तो 1 आवर मेरे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि मैं आई एम लेस ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडर. क्योंकि अभी जो इंडियन मार्केट्स हो गए हैं फॉर डेरिवेटिव्स, सिंस बिकॉज ऑफ दिस डेली एक्सपायरीज, तो ये लोग 90% ऑफ द टाइम साइडवेज रखते हैं एंड जस्ट 10% ऑफ टाइम इनका स्पाइक आता है या मोमेंटम आता है. तो एज अ ऑप्शन बायर यू नीड टू बी वेरी informative about when the momentum is about to come and when the momentum is about to finish. देखो, आपका मार्केट ऊपर जा सकता है, बहुत धीरे धीरे जा सकता है, बट आप कॉल ऑप्शन ऑब्जर्व करना. अगर मार्केट आपका 1 घंटे में से 50 पॉइंट ऊपर गया, आपका कॉल ऑप्शन 1 घंटे में 10 पॉइंट नीचे आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी के. कि अगर आप ऑप्शन में बैठे हो तो one thing you should be very clear in your mind that for like being an option buyer you need momentum. बिना momentum के आपके ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ेंगे. Right, okay, so I'll first discuss moving average setup trailing strategy. मैं moving average setup क्या होता है that I'll not discuss in this video, but rather how to trail a stop loss. कि फर्स्ट आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करोगे, उसके बाद अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पोजीशन ली, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रखना है. ऑलराइट, देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर लेट्स सपोज योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 1 लाख रुपीज़, चाहे जो भी हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, आपका एक ट्रेड में जो अमाउंट जाना चाहिए वो आपके टोटल ट्रेडिंग कैपिटल से 10% 5% या 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज आपका एम होना चाहिए कैपिटल प्रिजर्वमेंट, नॉट कैपिटल क्रिएशन. इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा कि अगर मैं मार्केट में कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं पैसे कैसे बचाऊँ. बनाते वो पैसा है जिनको पहले बचाना आता है. अगर लेट्स सपोज यू आर टेकिंग अ ट्रेड, यू हैव 1 लाख रुपीज़ कैपिटल, राइट, एंड यू आर टेकिंग अ ट्रेड ऑन फुल 1 लाख. लेट्स सपोज आपका आपने 100 रुपये पे ऑप्शन लिया, एंड आपका वो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन की टेंडेंसीज होती है टाइम डीके में नीचे आ जाना. क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यू शुड प्रॉब्ली नो दैट टाइम इज़ ऑलवेज अगेंस्ट यू. अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है बट 1.5 घंटे में जा रहा है या 2 घंटे में 3 घंटे में जा रहा है, तो जितना प्रीमियम आपका मार्केट ऊपर जाने पड़ेगा उतना प्रीमियम आपका वो खा जाएगा टाइम. राइट, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. ऑलराइट, सो एज एन ऑप्शन बायर यू नीड मोमेंटम. और अगर मोमेंटम नहीं आ रहा तो आपको आपका एस एल लगेगा या टी एस एल. बाई टी एस एल आई मीन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. राइट, सो अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मूविंग एवरेज पे. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मूविंग एवरेज में आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो थोड़े से पोजिशनल या इंट्राडे पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो निफ्टी का स्पॉट का देख लेते हैं या फ्यूचर्स का देख लेते हैं. वो कॉल का प्रीमियम नहीं देखते, क्योंकि उनको मालूम है कि कॉल का प्रीमियम ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं फ्यूचर्स खरीद के या बेच के. तो कॉल के प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है. बट आपका अगर स्पॉट या फ्यूचर, बेस्ट थिंग इज़ फ्यूचर. आप फ्यूचर ऑब्जर्व करो, क्योंकि फ्यूचर्स रियल पिक्चर दिखाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है. स्पॉट को ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट फ्यूचर्स में अगर वॉल्यूम के साथ अगर मूवमेंट आ रहा है, वो मैनिपुलेटिव नहीं हो सकता. राइट, 80% केसेस नहीं हो सकता. 20% केसेस में तो आप फ्यूचर्स भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं.
ऑलराइट, सो बहुत सारे लोग आपका स्पॉट देख के ट्रेड करते हैं कि अगर मेरा स्पॉट पे लेट्स सपोज इंडेक्स है, मैंने ट्रेड लिया 24,300 पे कॉल ऑप्शन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से 300 से 300 400 500 चला जाएगा। तो अब मैंने स्टॉप लॉस लिया 50 पॉइंट का कि अगर 24,250 के नीचे एक भी 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल बंद हो गई, आई विल एग्जिट माई ट्रेड। उन फॉर दोज पीपल ऑप्शन प्रीमियम डज नॉट मैटर, whether they bought the call option at 120 140 220, it does not matter. They look at spot price. If the market is above 24,300 they'll be bullish, if the market is below 24,300 they'll be bearish, or neither bullish nor bearish. ऑलराइट, सो बहुत सारे लोग स्पॉट को देख के करते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पॉट का भी देख के कर लेंगे, एंड विल ऑल्सो डिस्कस दैट अगर कॉल ऑप्शन आप प्रीमियम का चार्ट देख रहे हो तो प्रीमियम के चार्ट से कैसे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, राइट। तो देखो, हम बात कर रहे थे कैपिटल की, राइट। सो अगर आपका 1 लाख कैपिटल है, सो यू कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10,000 रुपीज़ ऑन अ सिंगल ट्रेड। अगर आपने उससे ज़्यादा कर लिया और कॉल ऑप्शन का डीके हो गया, तो आपका मान लो आपने 1 लाख का ट्रेड ले लिया और 100 रुपये का ऑप्शन लिया और वो 100 का 50 आ गया, एक ही स्पाइक में 50 आ गया, एक ही डाउन स्पाइक में 50 आ गया, तो आपके तो 50,000 रुपये उड़ गए। सो योर एम इज़ टू मैक्सिमम हाउ यू कैन फॉर द मैक्सिमम टाइम हाउ यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपके पास इफ यू डू नॉट हैव द कैपिटल, व्हाट विल यू ट्रेड? पीनट्स, राइट। सो योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम और गोल शुड बी कैपिटल प्रिजर्वमेंट। अब इस कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत कंजर्वेटिव रखना होगा। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग लॉस में हो तो आपको सुपर कंजर्वेटिव रखना होगा। बाय सुपर कंजर्वेटिव आई मीन कि अगर आप 1 लाख का कैपिटल है, यू कैन नॉट ट्रेड मोर देन 8 to 10% ऑन अ सिंगल ट्रेड। 10,000 की ट्रेड से ज़्यादा आप एक ट्रेड पे जा ही नहीं सकते। आप द मोमेंट यू चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल, आप लिटरली इफेक्ट देखोगे कि आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर रहे हो, और जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में सर्वाइव करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे मार्केट से। ऑलराइट, क्योंकि क्या होता है ना, देखो हाई कैपिटल पे आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो वो 20% नीचे आ गया, आपको 20,000 का लॉस दिख गया, आप पैनिक करने लग जाओगे, यू विल स्टार्ट पैनिकिंग, यू विल फॉरगेट ऑल योर ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, दैट वाई I should exit the trade, why I should be in the trade. All right. So when your loss is less, you will panic less, and when you panic less, your brain will be clear that नहीं, यहाँ पे मेरे को एग्जिट नहीं करना, यहाँ पे मेरे को ट्रेड में रहना है, यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर जाएगा। So that's why I always in my videos I always focus in my Telegram channel, I always focus on this thing that always under trade in context of quantities, कि अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो वो मैनेजेबल है। राइट, सो अगर आपने एक मान लो 10,000 की ट्रेड ली, आपने 100 पे बाई किया, सो टेक्निकली जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 20%। सो इफ़ यू आर बाइंग एट 100, योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 80। अगर 80 के नीचे, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम कि आप 15 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो या आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो। सो जनरली लोग इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं तो 15 मिनट्स पे ट्रेड करते हैं, राइट। सो 15 मिनट कैंडल इफ क्लोजेस बिलो 80, और कभी कभार क्या होता है कि 80 पे आता है बट 80 से सीधा 60 आता है, एंड 60 से वापस 90 आ जाता है। तो बहुत सारे लोग पैनिक क्या करते हैं, यार 60 आ गया मेरा तो, लॉस हो गया मेरा तो, 100 का 60 आ गया। बट द क्रूशियल थिंग यू शुड नोट एज अ गुड प्राइस एक्शन ट्रेडर कि लेट द कैंडल क्लोज। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने आता है, ट्रैप करने आता है, तो आपने 100 का ऑप्शन बाई किया है फॉर एग्जांपल, राइट। सो 100 का ऑप्शन आया, 60 तक आया बट वो क्लोज नहीं किया, क्लोज किया 90 पे, और फिर वो चला गया 100 के ऊपर। सो the first and foremost thing is let the candle close, whether it's 15 minutes whether it's 5 minutes, candle close होने दो। कभी भी अगर आपको बाय कॉल भी इनिशिएट करना है, if you are bullish above a particular level, let the candle close, वन कैंडल, लेट वन कैंडल क्लोज, आपको पता पड़ जाएगा कि यस माय एंट्री इज नियर। लेट सेकंड कैंडल आल्सो क्लोज, तब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि 2 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव 15 मिनट्स इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गई है, तो आई कैन बी बुलिश। ऑलराइट, तो ये आपको थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा कि अगर मेरा कैंडल क्लोज हो रहा है इस लेवल के ऊपर तो आई विल बी बुलिश, इस लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है तो आई विल बी बेरिश। सो कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आपने 100 पे लिया, अगर 80 के नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो रहा है तो आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है। अब आपका 1 लाख का कैपिटल था, आपने 10,000 का ट्रेड लिया, 20% स्टॉप लॉस लगा, 2,000 रुपये, टोटल कैपिटल का कितना इरोजन हुआ? सिर्फ 2%। अब यही ट्रेड लेते आप फुल पे तो टोटल कैपिटल का आपका 20% इरोजन होता, मतलब आप 20,000 रुपये दे देते। अब 20,000 रुपये का लॉस एक ही घंटे में देना ज़्यादा बेटर है या 2,000 का लॉस, ये आप खुद ही, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ देन यू कैन yourself analyze yourself, you can answer this question yourself, right? So जनरली ट्रेडर्स यही करते हैं, 100 पे लेते हैं 20% का एसएल,
अब ट्रेल कैसे करना है, मैं एक आपको वर्बली बता रहा हूँ कि ट्रेल कैसे करना है, फिर हम चार्ट से भी देखेंगे इसको। जो थ्योरी है उसको हम चार्ट से भी प्रूव करेंगे, ठीक है। अब 100 का ऑप्शन आ गया आपका, मान लो 120, तो आप एसएल खींच के ले आओ 90 पे। पहले आपका रिस्क क्या था कि अगर मान लो नीचे भी आता है, आपकी ट्रेड गलत जाती है, तो 20% आपका एसएल जाएगा, मीन्स 2,000 रुपये जाएंगे, 10,000 की ट्रेड है। अब आपका ऑप्शन प्राइस आ गया 20 रुपीज़ ऊपर, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो 90 पे, मतलब 10 रुपीज़ ट्रेल कर लो। और ऐसे ही अगर आपका जो ऊपर जाता जा रहा है, लेट्स सपोज आप अगर ट्रेड के स्टार्ट में हो, तो जो आपका ऑप्शन का प्राइस है 20 रुपये पर जा रहा है, स्टॉप लॉस ले आओ 10 रुपये। आपका कॉल ऑप्शन आ गया लेट्स सपोज 140, आप ले आओ 100 पे। तो अब आपने 100 पे खरीदा था और आपका 100 पे ही स्टॉप लॉस है। तो अगर यहाँ से आप आंख बंद करके सो भी जाते हो ना, तो आपको मालूम है कि आपका लॉस तो नहीं होगा। आपकी ट्रेड अगर 100 पे आती है, आपको मालूम है कि आपका सेटअप जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। या तो अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हो तो 100 का 140 आ गया, वहीं बुक कर दो, 40% रिटर्न है एक ट्रेड पर, और क्या चाहिए आपको। ऑलराइट। और अगर आपको लग रहा है मार्केट स्ट्रक्चर देख के कि 100 का तो 300 जा सकता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा आपका 100 पे। और आप अगर थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो तो उसको 90 पे रखो। सब कुछ डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। मान लो आपका उस दिन का प्रॉफिट है 10,000 रुपये, उस 10,000 में से आप सोच रहे हो कि मैं 3,000 तो रिस्क कर सकता हूँ, ठीक है, बढ़िया, आपने 100 पे लिया, स्टॉप लॉस रखो 70 पे, और आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। यू आर रिस्किंग योर 3,000 रुपीज़ फ्रॉम योर 10,000 प्रॉफिट, फेयर इनफ, राइट। सो अब जैसे आपका ऑप्शन प्राइस ऊपर गया 10 रुपये, लेट्स सपोज 20 रुपीज़ योर ऑप्शन प्राइस गोज अप, ट्रेल योर स्टॉप लॉस बाय 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट से ट्रेल कर लो, ठीक है। ये लोग ऐसे करते हैं नॉर्मली, जिनके पास मतलब कोई सेटअप नहीं होता या मूविंग एवरेज नहीं होती, सिर्फ उनके माइंड में होता है स्टॉप लॉस, कि मेरा ये जो परसेंटेज वाइज होता है, कि मेरे को मालूम है कि मेरे को आज एक दिन में मेरे को आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज मोर देन 5% ऑफ माई टोटल कैपिटल। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपका उस दिन का रिस्क क्या है, उस दिन का ट्रेडिंग कैपिटल क्या है। सो अब ऑप्शन प्राइस आ गया लेट्स सपोज 160, ऑप्शन प्राइस ट्रेल करके आपका टीएसएल ट्रेल करके ले आओ 120 पे। सो अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है, तो आपको 20 पॉइंट, यू आर स्कोरिंग 20 पॉइंट्स ऑन योर ट्रेड, बिकॉज यू बॉट एट 100, योर टी एस एल इज एट 120। अगर 160 से 120 भी आता है, तो भी आपको 20 रुपये मिल गए। नाउ इफ, और आपको अगर मार्केट स्ट्रक्चर को देख के अब लग रहा है कि यार ट्रेंड, आप फ्यूचर्स देख रहे हो, आपको लग रहा है थोड़ा सेलिंग की वॉल्यूम बढ़ रही है, हो सकता है कि यहाँ पे ये ट्रेड रुकने वाली है, तो अपना स्टॉप लॉस, भले ही आपकी ट्रेड जो आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो है 160, 160, 165, अगर वो कंसोलिडेशन में चला गया, लेट्स सपोज आपने बाई किया 100 पे, 100 से 140 तो बहुत तेज़ आ गया, और आपने अपना एस एल बी शिफ्ट कर लिया 80 से 100, ठीक है। अभी आपके पास 40 पॉइंट का बफर है, एंड अगर 40 पॉइंट नीचे आता है आपका एस एल लग जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट। अब वो चला गया 160, आपने ट्रेल किया 120 पे, एस एल ऑप्शन प्राइस चली गई 160, यू ट्रेल एट 120। नाउ 160 पे जाने के बाद वो साइडवेज हो गया, एंड 160, 170, 160, 170 वो साइडवेज चला गया ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर एक भी स्पाइक नीचे आया तो मेरा प्रीमियम वापस 100 आ सकता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या करते हो, टाइट कर देते हो, मीन्स यू, आपका ऑप्शन प्रीमियम तो बढ़ा नहीं, कॉल का प्रीमियम बढ़ा नहीं, 165 ही रह गया, बट यू ब्रिंग योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 130। तो इससे क्या हुआ, आपके हाथ में जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया 10 पॉइंट से, और थोड़ा सा डीके हुआ, और थोड़ा सा साइडवेज गया, तो आप अपना 140 ले आओ। तो धीरे धीरे ऐसा क्या होता है स्टॉप लॉस को, जब वेन एवर समवन सेज मेक योर स्टॉप लॉस टाइट, टाइट एज इन जो करंट प्राइस चल रही है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसके पास होना चाहिए, दैट दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्टली और वेरी टाइटली। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप कर सकते हो ट्रेल, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इसको स्लोली ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इंट्राडे में तो एक बड़ा स्पाइक नीचे आ सकता है, बट वापस ऊपर भी तो जाएगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो या आप एक स्विंग ट्रेडर हो, सो यू कैन लेस एग्रेसिवली ट्रेल योर स्टॉप लॉस, कि मान लो 160 आ गया तो भी आप स्टॉप लॉस रख रहे हो 110 पे। अगर आपने सुबह खरीदा 10 बजे, इफ यू हैव बॉट अ कॉल ऑप्शन एट 10 o'clock एंड यू वांट टू एग्जिट बाय 12 o'clock, so you will strictly trail your stop loss, which means your, if your option price has gone to 150, you should trail your stop loss to 110। keep the gap, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, so keep the gap between the current price and your trailing stop loss low। अगर आप बड़े ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, सो कीप योर गैप वाइडर, ताकि आपके पास ज़्यादा रूम होगा कि अगर मार्केट करेक्ट भी होता है थोड़ा सा, तो भी यू हैव इनफ स्पेस कि आप ऑप्शन के प्रीमियम को नीचे आने देने का मौका दे रहे हो, एंड इट शुड बाउंस फ्रॉम 130, 125। ऑलराइट। सो ये एक जनरल वाई, उसमें नॉर्मल टर्म्स में लोग ट्रेल करते हैं, मतलब उनके दिमाग में होता है स्टॉप लॉस,
ठीक है, अलग बात है वो सिस्टम पे लगाएं या ना लगाएं, बट एक नॉर्मल टर्म्स में ऐसा ये दिस इज हाउ। अगर आपके पास आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, या फिर आप फिबोनाची पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, सो दिस इज हाउ यू कैन इन योर माइंड और ऑन योर सिस्टम ऑन अ परसेंटेज बेसिस वाइज यू कैन ट्रेल, कि आपको रिस्क रिवॉर्ड, ये बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेलिंग टीएसएल होती है। इसमें आप ये नहीं देखते कि भाई मेरा मूविंग एवरेज का प्राइस क्या चल रहा है 20 का। सो नाउ कम वील डिस्कस दैट ऑन व्हाट बेसिस इन मूविंग एवरेज सेटअप how you can trail your stop loss, ठीक है। So first we'll discuss call option. So this is Nifty 24,500. Okay, this is future chart, so I'll go to this one. So this is 24,000 कॉल ऑप्शन, ठीक है। मंथली है ये अपना, कौन सी एक्सपायरी का है, इफ़ वी लुक एट राइट, सो दिस इज 18th जुलाई 24,000 एक्सपायरी कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो व्हाट हाउ वी ट्रेल आर स्टॉप लॉस इन मूविंग एवरेज सेटअप इज, देखो मूविंग एवरेज सेटअप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई जस्ट गिव अ बेयर मिनिमम डेफिनेशन, कि आपका क्या होता है, जो एंट्री ट्रिगर होती है वो कब होती है, अगर नीचे से आपका जो प्राइसेस आ रही हैं, इफ़ योर 5 EMA ऑन एनी टाइम फ्रेम, वेदर इट्स 15 मिनट्स, वेदर इट्स 5 मिनट्स, आई एम ऑन 15 मिनट्स, क्योंकि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 15 मिनट्स में रहता हूँ। इफ आई एम ट्रेडिंग स्विंग और पोजिशनल, आई ट्रेड और डेली और 1 आवर। ऑल राइट, सो अगर मेरा प्राइसेस, इफ माई प्राइसेस आर कटिंग ऑल माई ई एम एस एट वंस, राइट, एक ट्रैली में मेरी सारी, थोड़ा सा जूम करते हैं एंड विल सी, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व राइट, तो यहाँ पे मेरी जो प्राइसेस बॉटम आउट हुई, ठीक है, इफ़ माई प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट एंड मेरी एक कैंडल स्टिक ने सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज किया ऐसा वाला, राइट, तो हमारा जो बाय कॉल इनिशिएट होता है मूविंग एवरेज सेटअप के हिसाब से, वो इनिशिएट होता है जब आपकी प्राइसेस सारी मूविंग एवरेजेस को काटते हुए ऊपर क्लोज करें, एंड योर 5 EMA ऑल्सो इज कटिंग एवरी मूविंग एवरेज फ्रॉम द डाउन साइड। ये एक बेरिश बुलिश रिवर्सल बता रहा हूँ मैं, एक बेयर रैली चल रही थी, उसके बाद बुलिश रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पे आपकी एंट्री ट्रिगर हुई, कॉल ऑप्शन आप इस पॉइंट पे बाय करोगे, ये कैंडल क्लोज हुई ग्रीन वाली, आप यहाँ पे बाय करोगे। अच्छा, सेकंड कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हुई, मींस इफ योर प्राइसेस आर कटिंग 5 EMA ऑन द अपसाइड एंड 5 EMA इज कटिंग एवरी मूविंग एवरेज ऑन द अपसाइड, एंड वहाँ पे ये सब करने के बाद कैंडल क्लोज हो गई, तो आप यहाँ पे एक कॉल इनिशिएट करोगे एंड यू विल कीप योर स्टॉप लॉस। अब सिंस योर प्राइस इज अबव 5 EMA, सो योर प्राइस वुड बी अबव 20 EMA ऑल्सो, क्योंकि नीचे से जब आपकी प्राइसेस रिवर्स करती है, तो आपकी जो मूविंग एवरेज का सेटअप के हिसाब से आपकी when prices are reversing from bottom, your 5 EMA is at the lowest. So when from low, when 5 EMA is at the lowest, it starts getting on the upper side, or it start cutting every moving average, जैसे आप यहाँ पे if you are seeing right, your 5 moving average starts cutting 20 EMA first, and then it cut 50 EMA, 100, 200, every moving average it cut, and this candlestick got closed here. So you will initiate a buy call on this, राइट, आप इसका यहाँ पे ऑप्शन आके बाय करोगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको कॉल प्रीमियम के हिसाब से। अब यहाँ पे ट्रेल कैसे करना है, सपोज यू हैव इनिशिएटेड अ बाय कॉल ऑन दिस 24,000 18 जुलाई कॉल ऑप्शन, एंड करंटली द प्राइस इज अराउंड दिस 421। सो आपको देखना है अगर मूविंग एवरेज सेटअप के हिसाब से इफ योर प्राइसेस इज अबव 20 EMA और नॉट, तो लेट्स सपोज योर एंट्री प्राइस इज 402, अब 402 से प्राइस आ गई यहाँ पे 485, ओके, सो आपका जो 20 मूविंग एवरेज है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एनी टाइम फ्रेम, वेदर इट्स 5 मिनट्स, वेदर इट्स 15, वेदर इट्स 30 और 1 आवर, योर 20 मूविंग एवरेज वुड बी योर स्टॉप लॉस। अब देखो सिंपल है, आपकी प्राइसेस यहाँ पे थी, आपने इनिशिएट किया 400 पे, राइट, तो 400 से मान लो 430 आ गई, तो आपकी ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये भी ऊपर बढ़ती जाएगी। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये 20 मूविंग एवरेज देखो अभी ग्रीन लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, 535, राइट, तो जब प्राइसेस यहाँ पे थी तो मूविंग एवरेज आपकी थी 378, तो आपका अगर कॉल इनिशिएट कर रहा हो 400 पे, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आपकी प्राइस 20 मूविंग एवरेज बताएगी, राइट। अब लेट्स सपोज आपकी प्राइस होते होते यहाँ पे आ गई 614 पे, इफ़ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट, आपने 400 पे खरीदा 600 पे आ गया, इफ़ यू आर अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर एंड यू फील कि मार्केट के ये ऑप्शन की प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है, तो आप बुक कर लो, यहाँ पे बेस्ट है। इफ़ यू फील कि मार्केट प्राइस से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, सो ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अब जब मार्केट इस पॉइंट पे था, राइट, तो आपकी मूविंग एवरेज कहाँ गई, 20 मूविंग 430 पे, आपने बाय कहाँ पे किया था, यू बॉट एट 400, सो आपके पास 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट है कि इवन इफ द ट्रेड कम्स डाउन, इफ दिस ऑप्शन प्रीमियम कॉल ऑप्शन प्रीमियम 24,000 इट्स प्राइस कम्स डाउन, योर ट्रेड विल get exited at 430, you still are earning 30 points,
पर लॉट। ऑलराइट, सो नाउ अब देखो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 20 में। और स्टॉप लॉस कैसे रहेगा कि आपकी प्राइस चलती जा रही है 5 के हिसाब से। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट ने काटा 5 को, तो 5 के बेसिस पे चलती जा रही प्राइस। एंड आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जब तक मेरी एक भी 15 मिनट की कैंडल स्टिक, जिस भी आप टाइम फ्रेम पे हो, वेदर इट्स 1 आवर, इफ यू आर ऑन 1 आवर, इफ योर 1 आवर कैंडल स्टिक और 15 मिनट कैंडल स्टिक इज क्लोजिंग बिलो 20 काट दो ट्रेड को। all right, cut the trade, exit from the trade, that is your stop loss. So now see, if someone would have initiated a trade according to moving average setup at 400, he would have trailed his stop loss till this point. The price hit 600, 600 जब price आ गया था, so your this one 20 moving average was around 530. और जब क्या होता है आपका साइडवेज हो गया, सो योर 5 रिमेन स्टेबल, योर 20 स्टार्ट्स कमिंग अप, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस टाइट होता जाता है। आपको सिर्फ 20 को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि मेरा 20 कैसे कैसे ऊपर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आने के बाद आपका क्या हुआ, गिरने लगा, एंड द मोमेंट इट क्लोज द कैंडल स्टिक, आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं देते हो, इस पे योर स्टॉप लॉस इन योर माइंड कि जैसे ही मुझे दिखेगा कि मेरी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, यू विल एग्जिट द ट्रेड। अब वाई सम पीपल, I discussed in starting, right, how why you feel that operators know your stop loss, right? अब देखो क्या होता है, आप you are a retailer, you are a very small player in context of HFT players or big traders, right? उनके पास they have volumes of crores and you have volumes of thousands or maybe lakhs, right? So they can easily manipulate you. So ये चार्ट तो वो भी देख रहे होंगे, those people will also be seeing this chart, right? So they know कि बहुत people, I mean many people ट्रेल देयर स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेज। तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस को लेके आते हैं, उनको लिक्विडिटी चाहिए होता है बेसिकली, they are option sellers and they need buyers. So to bring buyers into system, what they do is they specifically let the option price go down, ताकि बहुत सारे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो, लिक्विडिटी आए या बायर्स आए, एंड दे अगेन सेल द ऑप्शन। ऑलराइट, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी होती है। तो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, 20 चल रहा है, सो एच एफ टी नोस कि बहुत सारे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होगा 20 तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 530 चल रहा है, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं उससे 20 पॉइंट नीचे, कि अगर 530 को, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को मालूम है कि सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा 530 पे, एंड स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में। तो अगर मार्केट 5 तक आता भी है तो एग्जैक्टली 20 मत लगाओ, मतलब 20 तक आता भी है, डोंट कीप योर स्टॉप लॉस। ये थोड़ा सा एडवांस्ड एसएल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं जिनको बस खरीदना है बेचना है, दे कैन कीप एग्जैक्टली एट 20 बट इफ़ यू आर समवट अ मेच्योर ट्रेडर और आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये आई थिंक अभी तक पता पड़ गया होगा दैट इफ़ यू आर कीपिंग योर स्टॉप लॉस एग्जैक्टली एट मूविंग एवरेज पॉइंट, सो आपका आएगा उस पॉइंट पे 20 तक आएगा, वहाँ पे कैंडल क्लोज नीचे भी जाएगा उससे, बट कैंडल क्लोज होगी ऊपर। नाउ अगर आप कोई 5 के हिसाब से ट्रेल कर रहा होगा ना, ये देखो, इफ़ यू क्लियरली सी एट दिस पॉइंट योर प्राइसेस केम बिलो 5 बट अब बड़े प्लेयर्स को मालूम था कि जो लोग 5 से ट्रेल करते हैं, जो कंजर्व एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेल करते हैं, उनका मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस खाऊंगा और फिर ऊपर जाऊंगा। दैट्स वाई अगर आप थोड़ा सा भी लेस कंजर्वेटिव हो, या आपको आप 1 घंटा, इफ़ यू आर स्टेइंग इन द ट्रेड फॉर 1 आवर 2 आवर, यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस 20-30 points depending upon your time frame. If it's 15 minutes, you can keep around 20 points. If it's 1 hour, you can keep around 30-40 points. So 535 पे मान लो the uh, your option premium price was at 600. So at this point your moving average was 517. All right. So keep your stop loss at 500. ठीक है, अब आपने 400 बाई किया था, वी बॉट एट 400, अगर आपका 500 पे भी स्टॉप लॉस है तो अभी भी आपका हिट नहीं हुआ, सो यू आर मोर कंजर्वेटिव, राइट, you are less conservative. But if you are more conservative, keep your stop loss exactly at 20 the moment a single candle closes below 20 exit that trade. So this was how on the basis of moving average you can trail your stop loss. तो आपको देखना है कि जब मेरी प्राइस 20 के नीचे मेरी कैंडल क्लोज हो जाए, आई नीड टू एग्जिट दैट ट्रेड। एंड इसके बेसिस पे आप देखो, आपने 400 पे ट्रेड किया, जब तक प्राइस 600 नहीं चली गई, डिड एनी कैंडल से क्लोज बिलो 20 नो। सो दिस वाज moving average trailing strategy. All right, let's come to आपका next setup जो लोग यूज करते हैं, which is supply demand setup. All right, so okay, so even before this one, right, supply demand
stop loss trailing, so we'll discuss Fibonacci stop loss trailing strategy, right? So I'll exit this. अब देखो Fibonacci बेसिकली क्या डिफाइन करता है, अगर आपको रिवर्सल फाइंड करना है, राइट? सो आप एक टॉप, सिग्निफिकेंट टॉप और एक सिग्निफिकेंट बॉटम मार्क करोगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर जोन्स, राइट? आप देखो, सो ये चीज़ मैंने बहुत क्लियरली अपने फिबोनाची सेटअप में समझा रखी है कि हाउ पीपल ट्रेड यूजिंग फिबोनाची सीरीज। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आई अटैच द लिंक टू द वीडियो ऑन द टॉप राइट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, सो देखो, ये 15 मिनट्स है, मैंने फिबोनाची कर दिया। अब आपको पता है कि मेरा यहाँ से रिवर्सल आ गया। सो हाउ यू विल कीप योर स्टॉप लॉस इज, लेट सपोज आपने यहाँ पे इनिशिएट किया, मूविंग एवरेज के हिसाब से आपने ट्रेड इनिशिएट कर दी, राइट? एंड आपने ये फिबोनाची भी मार्क कर दिया। सो दिस इज समवॉट फिबोनाची प्लस मूविंग एवरेजेस। अगर आप मूविंग एवरेज हटा भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। मान लो आपने ट्रेड इनिशिएट किया 400 पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन था। यहाँ पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया कि भाई सप्लाई जोन के ऊपर गया, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस सेलर्स के कटे होंगे, जो यहाँ पे बियर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। नाउ आपने ये फिबोनाची मार्क किया, यू नो कि अगर नीचे से प्राइसेस सबसे पहले मेरी जा रही है रिट्रेसमेंट 60 तक, ऑलराइट, तो मेरा पहला सपोर्ट कहाँ आएगा? 61.8 पे या मेरे 50% रिट्रेसमेंट पे। तो आप अपना स्टॉप लॉस रखो 38 उस पे, 38% पे। सो आपने लेट्स सपोज यू बॉट एट दिस वन 400, यहाँ पे बाई किया। तो प्राइसेस अगर जब तक मेरे 376 पे नहीं आती तो कितना पॉइंट स्टॉप लॉस हुआ? 24 पॉइंट्स। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मान लो प्राइसेस यहाँ पे आती तो आपका स्टॉप लॉस लग जाता कितने पॉइंट्स का? 24 पॉइंट्स का, 376 पे। नाउ सिंस द प्राइस अगेन मूव्ड अप, तो आप अपना स्टॉप लॉस ले आओ 50% पे, राइट? तो अब अगर प्राइसेस घूम के फिर वापस 400 पे आ पे, तो आपका स्टॉप लॉस आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, या 5 पॉइंट्स ऊपर। और प्राइसेस ऊपर गई, आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो 430 पे, राइट? सो इफ नाउ द प्राइसेस रिटर्न बैक टू माई 60% रिट्रेसमेंट, क्योंकि अब अगर आप इसका अपर लेवल देखोगे तो इस फिबोनाची का 100% अचीव हो गया, राइट? अब अगर मान लो किसी ने बॉटम पे ट्रेड इनिशिएट किया होता, तो उसका देखो, लेट्स सपोज समबडी इनिशिएटेड द ट्रेड हियर एट 38%, उसका स्टॉप लॉस क्या रहता? 0% यहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ समवन इनिशिएटेड एट 400, जो केस मैंने अभी डिस्कस किया, तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा आपके 38% पे। तो ये फिबोनाची का होता है। अब देखो एग्जैक्टली ये जो मैंने फिबोनाची मार्क किया है, इसका अपर रेजिस्टेंस कहाँ है? इसके 138 लेवल पे, 138% जो इसका इन्वर्स रेशियो होता है। तो ये इसके एक्सटेंशन फिबोनाची के फायदे होते हैं कि आपको ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा एग्जैक्टली आपको मालूम होता है। सो फिबोनाची हमेशा एक सिग्निफिकेंट टॉप और बॉटम पे मार्क कर लो, सो यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या इसका अपर लेवल आ सकता है। तो एग्जैक्टली आप देखो 138 पे गया, और मेरे को तो मालूम भी नहीं था, आई जस्ट बॉटम्ड आउट द चार्ट एंड इट शोड मी कि मेरा 138% रिट्रेसमेंट तक गया। अब 138 तक गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस 61.8 पे, स्टॉप लॉस आ गया 433 पे। अब मार्केट यहाँ से लेट सपोज और ऊपर जाए, मार्केट गोज टू 600, तो 600 से आप अगर मान लो 670 आ गया, जो इसका अपर एक्सटेंशन लेवल के भी ऊपर है, सो ब्रिंग योर स्टॉप लॉस एट अराउंड दिस लेवल विच इज 100%. So if your option price is at 670, your stop loss would be at 535. You bought at 400, your stop loss now is at 535. You have 135 points profit in your hand. So this is how you can trail in Fibonacci also. All right. So थोड़ा सा let's change the time frame, and since I am an intraday, not an intraday trader but more of a sort of swing or positional trader, तो मैं 1 hour सेटअप देखता हूँ। 1 hour में मैं सबसे बेस्ट ट्रेड करता हूँ अपना मूविंग एवरेज। उससे बेस्ट मेरे मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अब देखो मेरा मूविंग एवरेज सेटअप क्या कहता है, अर्ली का अगर मैं पोजिशनल हूँ, तो मेरी सारी मूविंग, माई ऑल मूविंग एवरेज शुड कट, लाइक 5 मूविंग एवरेज शुड कट ऑल मूविंग एवरेजेस, एंड प्राइसेस शुड ऑल्सो कट माई एवरी मूविंग एवरेज। सो मेरी पहली कैंडल स्टिक यहाँ क्लोज हुई, 5 वीक फिफ्थ मूविंग एवरेज ने भी सबको काट दिया, एंड माई प्राइस ऑल्सो क्लोज अबव 20 एंड 5 EMA. So now I will initiate a buy call and will not exit this trade for days until my price again closes back below 420, राइट? तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनता है, सिंस बिकॉज आई एम अ पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडर, आई एम अ पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर, आई हैव अ बिग स्टॉप लॉस। तो मेरा यहाँ पे रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है। अब देखो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, अगर प्राइसेस और ऊपर जाती हैं तो ये जो आपकी मूविंग एवरेजेस हैं, ये यहाँ से क्या होगा,
खींचने लग जाएंगी, तो ये 20 EMA ऐसे आएगी, तो आपकी तब प्राइसेस यहाँ होगी। अगर मान लो प्राइसेस ऐसे आ रही है, यहाँ पे कैंडल बनी एंड टिल दिस पॉइंट आपकी जो 20 मूविंग एवरेज है वो ऐसे आ गई। सो व्हेन आई विल एग्जिट द ट्रेड, जब मेरी एक 15 मिनट्स या सॉरी I am on hourly. So when my hourly candlestick closes below 20 MA, that moment I'll exit my trade. So I bought at 400, right? I exited at somewhat around 575. So this is also moving average setup trailing strategy on hourly basis. और आप अगर वीक्स या मंथ्स के ट्रेडर हो तो आप डेली पे ट्रेड करो, but majorly are intraday or probably 1 day or 2 day, since it is not advisable to hold योर बाय ऑप्शन पोजिशंस फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि उसमें टाइम डी के हमेशा फैक्टर इन होता रहता है। एंड इफ द मार्केट डज नॉट मूव इन योर डायरेक्शन और इवन इफ इट स्टेज कंसोलिडेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू विल lose your points in time decay. All right, I hope you are getting little bit clarity on how to trail stop loss. हम वी आर प्लानिंग टू डू सम लाइव सेशंस, तो लाइव जब मार्केट लाइव होंगे तब हम चार्ट्स पे फिबोनाची मैप करेंगे, हम लोग मूविंग एवरेजेस मैप करेंगे, एंड वहाँ पे भी हम ये सिखाएंगे कि कैसे इसको आपके एस को ट्रेल करना है। ऑलराइट, सो दिस वॉज यू नो रिगार्डिंग योर फिबोनाची ऑल्सो। ठीक है, अब सप्लाई डिमांड पे कैसे लोग ट्रेड करते हैं देखो। अब सिंपल है, लेट्स क्लियर आउट एवरीथिंग एंड आई विल ऑल्सो प्रॉब्ली यू नो clear out everything. Only keep 15 minute 5 EMA, so we'll go on 1 hour. And so now where is the major supply zone? Here. And where is the major demand zone? Right, अगर आप इसको 5 मिनट्स पे भी जाके मैप करोगे ना, तो 5 मिनट्स पे सप्लाई डिमांड जोन आते हैं बट छोटे आते हैं। देखो अब आपको मालूम है ये मेरा मेजर सप्लाई जोन है 5 मिनट्स पे, एंड यहाँ से मेरा रिवर्सल आया तो ये मेरा एक डिमांड जोन बन गया। लेट्स सपोज आपको मालूम है ये भी एक लेट्स मार्क अ डूडल एंड यू नो दैट दिस वाज आल्सो अ सप्लाई जोन, राइट। सो क्या करोगे, आपको मालूम है, लेट्स जस्ट अ सेकेंड, आई विल स्क्रॉल इट लिटिल बिट हियर। ओके, so what you'll do, you know there are many sellers here, so if my prices are sustaining above it, probably my these sellers are starting to exit. So what you'll do, you'll initiate a trade here. this is this will become, so अगर कोई मेरा एक सप्लाई जोन ऑलरेडी है और मार्केट उसको ब्रीच करके वहाँ सस्टेन करता है, तो वो मेरा डिमांड बनने लग जाता है, वहाँ पे बायर्स आने लगते हैं। सो दिस वाज माय अर्लियर सप्लाई जोन, बट प्राइसेस सडनली वापस आई यहाँ पे एंड यहाँ पे सस्टेन करने लग गई। सो सडनली ये जो सप्लाई जोन होता है ना, डिमांड जोन बन जाता है, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर स्टार्ट होते हैं, इनिशिएट होना। तो यहाँ पे आप एक बायर ऑर्डर कर सकते हो एंड आपको मालूम है नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पे है, राइट। तो ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। ठीक है, अब प्रीवियस जो आपका डिमांड जोन था वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सो इफ यू हैव इनिशिएटेड अ ट्रेड हियर, योर स्टॉप लॉस वुड बी शुड बी अराउंड दिस। इसमें कोई मूविंग एवरेज नहीं है, इसमें कोई फिबोनाची नहीं है, दिस इज प्योर सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग, राइट। अब यहाँ पे मालूम है आपको कि यहाँ पे सप्लाई था, देखो यहाँ पे आते ही सप्लाई जोन पे आते ही एक मार्केट ने रिवर्सल लिया। सो या तो आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, एग्जिट द ट्रेड हियर। बट सिंस द मार्केट ऑल्सो और ऊपर गया एंड इफ यू ऑल्सो थिंक कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप अपना क्या करो, स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ टू द नेक्स्ट सप्लाई डिमांड जोन। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मार्केट, यू नो मार्केट इफ कम्स फ्रॉम हेयर टिल हेयर, सो this is now my demand zone, so prices should take a support from here and then can go above. Now the thing which I earlier mentioned, that once a supply zone is breached and prices are sustaining above it, it becomes demand zone। ये देखो ये सप्लाई जोन था, जब तक प्राइसेस टिल व्हेन प्राइसेस डिड नॉट ब्रीच दिस पॉइंट, दिस वाज अ सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ पे आया, सप्लाई लिया, मार्केट यहाँ पे आया, सप्लाई लिया, मार्केट ब्रीच, prices breached this supply zone and it came again near this supply zone. So now supply zone has become my demand zone. So मेरा अगर prices यहाँ तक आ रही है, मेरा stop loss होना चाहिए ये, right? I hope you are getting a clarity on how to trail the stop loss on the basis of supply and demand. All right, so now since मेरा जो, one second, I'll remove all these drawings. So now since my ये वाला जो मेजर सप्लाई जोन था ये भी ब्रीच हो गया, सो नाउ माई स्टॉप लॉस शुड बी दिस, राइट। अब देखो क्या प्राइसेस इस पॉइंट के नीचे आई, नहीं। सो आप सप्लाई डिमांड जोन में आपने कहाँ पे बाई किया, इनिशिएट किया यहाँ पे, एंड आपका ट्रेल कहाँ तक हुआ, यहाँ तक। सो दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। सो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड कि इट इज़ लाइक
अगर आप skydiving, if you're going for a skydiving, right, so your stop loss is your parachute, right? You won't jump from a goddamn plane from 15,000 meters without a parachute, right? So parachute is your stop loss. Your life would be saved on the basis of your parachute. So parachute is your stop loss in your trading system. So we started from the point where we were discussing that stop loss is a mandatory thing in your trading system, and we applied a stop loss here. We trailed on the basis of supply and demand zone. I hope you are getting a clarity on that, on how to uh, trail your stop loss. So अगर आप, if you have initiated a trade at 400, you kept trailing your stop loss, whether on the basis of moving average, whether on the basis of your Fibonacci, or whether on the basis of your supply demand zones, जो भी आपको comfortable लगता है, on whatever trading setup your hands are more fine, whatever you have practiced the most of the times, keep that system. And बार बार अपना trading setup system change मत करो कि tomorrow, yesterday you were trading on moving averages, tomorrow you are trading on Fibonacci. So this will make your habit bad of trailing stop loss, और आप या तो कंफ्यूज जाओगे कि यार फिबोनाची ज़्यादा एक्यूरेट है या आपका कौन सा एक्यूरेट है. ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम for a particular time, for a month or two, then evaluate that what is its accuracy. All right, traders, I hope I'm able to give you a clarity that on what basis you can trail your stop loss, and what are the necessary points you can keep to trail your stop loss. तो आई हैव मेड यू सी दैट हाउ टू परफेक्टली ट्रेल योर स्टॉप लॉस. आपके सामने है चार्ट, एंड we'll try and probably we'll do this in live sessions when the market is live, and we'll keep our all moving averages on the charts. We'll keep the supply demand zones. And सबसे perfect पता है कब होता है? When you are in advanced trading setups where you combine supply demand with moving averages. उससे better कुछ होता ही नहीं. उससे बेटर परफेक्ट स्टॉप लॉसेस कहीं आती नहीं. एंड यू विल सी कि जहाँ पे आपका जो 20 मूविंग एवरेज आ रहा है, वही आपका सबसे बड़ा डिमांड जोन बनता है. अगर मार्केट स्टिल इज बुलिश तो 20 EMA पे आएगा, सपोर्ट लेगा, वहीं से बुलिश हो जाएगा. समटाइम्स क्या होता है कि अगर बहुत ही वॉलेटाइल है मार्केट, सो मार्केट इवन क्लोजेज अ कैंडल बिलो 20 EMA, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है. तो लोग क्या करते हैं, व्हाट पीपल डू इज अगेन री एंटर, और उस टाइम उनका स्टॉप लॉस लग गया तो मार्केट समझ जाओ वॉलेटाइल है, साइडवेज है. So that's how people trade. That's how I basically trail my stop loss using moving average and majorly supply demand. Supply demand is the basic key. आपको you need to understand where are the most sellers and where are the most buyers. And since as an option buyer, most of the people probably viewing this video would be option buyers. So option buyers need momentum. So momentum कहाँ आता है? जहाँ पे option sellers डरेंगे. अब इस पॉइंट पे अगर आप ये चार्ट देखोगे, तो लेट्स सपोज कि प्राइसेस केम फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, तो यहाँ वाले सेलर्स डरे होंगे. अब यहाँ वाले सेलर्स डरे, बट उन्होंने यहाँ प्रेशर डाला. उनको पता है कि अब दूसरी बार भी सेकेंड टाइम द प्राइस हैज कम टिल हेयर, सो नाउ वी हैव टू एग्जिट आवर पोजीशन. सो sellers from here, sellers from here exited at here, and a big pump came. So this is the move, momentum where the option buyers make the most money. This is the momentum where option buyers make the most money, and this is the momentum where option buyers lose most of the money. So you need to take care कि आपको अगर होल्ड कर रहे हो तो इस मोमेंट में होल्ड नहीं करना है, आपको इन मोमेंट्स में होल्ड करना है. And how would you know that? Supply demand, moving average, and Fibonacci. I have explained everything, but don't try to make your trading system complicated by mixing up everything. Your chart should have maximum clarity, one trading setup, whether, and very few indicators, whether they are two or three or probably max to max four moving averages, or whether it's a Fibonacci. Don't make your trading system complex by indulging everything, supply demand. I've seen new traders having what 9 EMA, 3 EMA. Just have simple 4 moving averages and or supply demand zone. Best strategy. You can trail your stop loss, right? And अगर आपको बड़े points capture करने, trade on 1 hour. Best 1 hour पे I'll make you see. देखो supply demand हमने मार्क किया था. So I'll make you see on the basis of 1 hour. ये देखो, this was 1 hour. So my earlier demand zone was what? This one, and supply zone was this one. I initiated a trade here and I knew कि जब तक मेरा prices वापस इस तक नहीं आता, मेरा stop loss ये रहेगा.
price is high nahi, and still I bought it here and still I'm in the trade, right? So this was everything about trailing your stop loss in different strategies. All right, traders, so I hope I'm able to make you clear. This video is very long, but it's a very important session. You should probably, if you have your trader friends, you should actually share with them. This is what my knowledge, from past 3 to 4 years from trading experience, this is what I'm bringing to you on the table. All right, I hope you are liking the video. If you are seeing till this end, right, leave a like, leave a comment that how, if you don't, if you, even if you didn't like the video, comment in the comment section. I'll be happy to improve my video recording lectures. All right, so I'll be taking your leave from here, and I'll stop the video. Be safe in the markets. Cheers.